किन किन चीजों को हम डिस्कस करते हैं whenever we are going to talk about the geography? What type of thing we are going to discuss? First is landforms, okay, where we include all the plateaus and desert and all the other thing. We also discuss the water. We also understand water bodies, okay. We understand mountains. We are also going to talk about something about the beaches, okay. We can also include in the water bodies, and we discuss so many things which is related to the climate, which is related to the, more specifically relate into the with the geography, okay. So these forms we helps to understand the geography part. One thing we also include is climate, okay. This is a more important thing whenever we are going to talk about the geography, okay. So this component which is climate, it is more important thing whenever we are going to talk about the geography, because the climate, as we know, our tourism and travel industry, tourism and travel industry is having a characteristic of seasonality, okay. So in seasonality we know we have some specific time period where we have seen the more tourist and more client in specific duration of time, and less tourist and less people and specific time of period. So these things we also know that what kind of climatic condition in this specific period, when we are going to see lot of tourists in the specific time. For example, seasonality, we in term of the seasonality, we are having a time which is started from the September to the March, okay, which called as the peak season, okay. On the other hand, if we are talking about the lean season, which is the opposite of the peak season, where we are having less number of tourists, okay, the what is the duration of time which is started from March, okay, start from March and end on August, okay. This is the basic idea, okay. The 1 month इधर से उधर हो सकता है, okay. So these are the specific thing to understand all these thing. You can see over here that we are having a specific limitation of the seasonality. अब seasonality में हम ये देखते हैं क्यों यहाँ पर हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में वी आर हैविंग अ लेस नंबर ऑफ टूरिस्ट, एंड अदर टाइम पीरियड में हमारे पास मोर नंबर ऑफ टूरिस्ट, बिकॉज ऑफ some in our India we are having a different type of climatic conditions, okay. Because of the climatic condition, one area is having a quiet winter or having cold day, cold weather, okay, and one area having lot of summer, we can also summer part or lot of humidity, okay. So we are having different kind of climatic zone, so that climatic conditions. So to understand all these things, we have divided all these हमने इसको समझने के लिए we have divided climate into the different zone, which we called as the climatic zone. To understand all these things कि कहीं पर ज्यादा गर्मी है, किसी पर कहीं पर ज्यादा cold है, तो to understand all these things we divided all these part into the climatic zones, okay. So climatic zones, in climatic zones we have divided into three parts. First is low climatic zone, okay. Second is
mid climatic zone, and third we are having third and last highland or high. Okay, so we have divided all these zone to understand in better manner into three part. We have classified into three part, which is low, mid, and high. Okay, so in low we always include, we have further more classified low climatic zones into different part: tropical, subtropical. All the tropical things will comes under in this part. Okay, and मिड में क्या होगा, जहां पर एयर का मास क्या होगा, वो दो तरह से होगा. ठीक है, वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड इन ग्रेट डिटेल विद द हेल्प ऑफ दिस डॉक्यूमेंट. ओके, एंड इन हाई क्लाइमेटिक जोन में हमारे जितने भी हाई अल्टीट्यूड के हाई अल्टीट्यूड की चीजें होंगी, जैसे कौन सी होती है हाई अल्टीट्यूड की, हम क्या बोलते हैं जिसको, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हाई अल्टीट्यूड के क्या होते हैं, माउंटेन्स, जिनका ऑल्टीट्यूड बहुत ज्यादा हाई होता है. ओके, तो ऑल ये इनका मोर जो सबसे स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है वो है कोल्ड. ठीक है, ये हमेशा कोल्ड, मोस्टली कोल्ड या फिर कूल वेदर यहाँ पर रहता है. ठीक है, तो ये होता है हाई क्लाइमेटिक जोन. ट्रॉपिकल में आपको ज्यादा रेनफॉल वाली चीजें दिखेंगी, और मिड में हम भी देखेंगे अभी डिटेल में. So this is the basic idea of the climatic zone. Whenever we are talking about the climatic zone, we need to understand all the climatic zone, and we have classified into three part, which is low, mid, and high. Okay, so all these thing low, लो में जब हम बात करेंगे तो इन लो क्लाइमेटिक जोन वी ऑलवेज इंक्लूड दोज पार्ट विच आर हैविंग लो ऑल्टीट्यूड. लो ऑल्टीट्यूड, एंड मिड में हम बात करेंगे तो मिड ऑल्टीट्यूड, एंड हाई में हाई ऑल्टीट्यूड. So this is the basic idea whenever we are going to talk about climatic zone. We have related all these things to the seasonality. Okay, तो कि क्लाइमेट होता क्या है. ओके, तो सबसे पहले तो हमें ये बना होना चाहिए क्लाइमेट का क्या मतलब है, what things we need to include in climate, and what things we not need to include in this part. Okay, so climate broadly refer to the all these things. They have mentioned that climate encompasses the statistics of the temperature, humidity, atmosphere, temperature, humidity, atmosphere, pressure, wind. ओके, चाहे विंड को लें, फिर चाहे प्रिसेप्शंस को लें, प्रिसिपिटेशंस जो होते हैं हमारे, ये भी हमारे प्रिसिपिटेशन इसमें इंक्लूड होंगे. एटमॉस्फेरिक जो हमारी कंडीशंस चेंजेस होती हैं वो वी कैन आल्सो इंक्लूड इन दिस क्लाइमेट. And all these meteorological elements measurement which is given for the a specific time, long duration of time period. climate can be constructed Climate can be constructed whether which is the present condition element, or there are variations of the shorter time period. So a region climate of generated climate system which is encompasses atmosphere, ये सब हमने बात कर दी. तो in broad way we can, अब हम इसको वाइट बोर्ड से समझते हैं. ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हमने देखा क्लाइमेट होता क्या है. ओके, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्लाइमेट. सो क्लाइमेट इज combination of all these things. Whenever we are talking about the weather, temperature, humidity, okay, wind, atmospheric condition, atmospheric changes,
and particle. Okay, we can also include all these pressures. Okay, weather we have already included. Okay, so these all things we include in the climate whenever we are going to talking about the climate. So climate is a combination or the statistics of the these all these things. Okay, weather, temperature, humidity, wind, atmospheric changes, pressure. ओके, अगर हम इसको और अगर दूसरी चीजों में लेंगे तो फिर हम ले सकते हैं, इसमें और भी ले सकते हैं। जैसे हम बात करेंगे जो साइक्लोन वगैरह आते हैं, हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर एक आपने यहाँ पर बायोस्फेयर देखो, बायोस्फेयर, बायोस्फेयर, they have mentioned biosphere. We can also include hydrosphere. ओके, तो हमने तो the climatic of a location is affected by its latitude. किस किस चीज से हमारा इफेक्ट होता है वहां का लोकल का जो भी हमारा क्लाइमेट है। पहला है लैटिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड, टेरेन, ऑल्टीट्यूड एज वेल एज नियर बाई वाटर बॉडीज एंड देयर करंट। Climates can be classified according to the average and the typical ranges of the different variables like temperature and precipitations. The most commonly used classification scheme was originally developed by the Vladimir Koppen. व्लादिमिर कोपेन ये बहुत बड़े आपके ज्योग्राफी में इनका बहुत अच्छा काम है, इनकी कुछ बुक्स भी हैं। ओके, एंड द front weight system in use since 1948. They have classified all these climatic condition in 1948. Climate from ancient time, कलीमा से आया है ये, ठीक है, कलीमा से इसका नाम आया है climate, which means inclination, is commonly defined as the weather averaged over a specific time of period. ठीक है, तो दे हैव कॉमनली डिफाइंड एज दी वेदर कंडीशन। अगर हमारे स्पेसिफिक लॉन्ग टाइम पीरियड में जो हमारी वेदर कंडीशन है वो क्या होती है, उसमें क्या चेंजेस आते हैं। इफ वी आर गोइंग टू सी दीज थिंग, so we can include all these things in the climate. The standard average period in 30 years, but other period may be used depending on the purpose, what kind of purpose they are using. Climate also include statistics of the other averages like magnitude, day to day or year to year variations of the climatic condition. Okay, intergovernmental panel climatic changes. अब ये देखो, ये जो है इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है IPCC, which called as the Intergovernmental Panel on Climatic Changes. They have defined climate in a standard manner, जो इसकी standard definition है, so they have mentioned like that. Okay, the climate in a narrow sense is usually defined as the average weather. एवरेज वेदर, अच्छा हमने यहाँ पर पहले पढ़ा था, स्टैटिक फॉर्म है इसका। मतलब जब भी हम स्टेटिस्टिक्स की बात करते हैं तो वहां पर हम एवरेज चीजें लेके चलते हैं, यानी कि हमारा 10 सालों के बीच में क्या एवरेज रहा था वेदर का, क्या हमारे पास टेम्परेचर था, क्या हमारे पास रेनफॉल था, ठीक है, इसके अलावा हमारा एयर प्रेशर क्या था उस वक्त, और हमारा जो ह्यूमिडिटी थी वो कितनी थी, तो ऑल दीज विंड की क्या कंडीशन थी, जब हम इनका सबका एवरेज निकालेंगे तो वी कैन कॉल दी वेदर। ओके, बट इन्होंने क्या कहा है कि वेदर इज अ नैरो सेंस, यूजुअली डिफाइंड एवरेज वेदर। ठीक है, वेदर में सारी चीजें आगे जो हमने आपको बताई, टेम्परेचर वगैरह, मोर रिग्रेसली एज द स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन इन टर्म्स ऑफ द मीन वेरिएबिलिटी relevant quantities over a specific time of period. Okay, the classical period 30 year as defined by the World Meteorological Organization WMO. These quantities are most often surface variables such as temperature, precipitation, and wind. Climate in a wider sense is a state
include statistical description of the climate system. So IPCC has defined the definition of the climate. According to the definition of the IPCC, they have mentioned that the climate is the they have mentioned that the climate is whenever we are going to talk about the climate is equal to average वेदर. ओके, जब भी हम इसमें बात करेंगे क्लाइमेट की तो हम एवरेज वेदर को लगेंगे. अब वेदर में क्या होता है? वेदर में तो सारी चीजें हो जाती हैं जब वेदर देखते हैं. जब आप कभी वेदर में भी अगर आप गूगल में भी देखते होंगे तो वहां पर क्या क्या चीजें मेंशन होती हैं? पहले तो टेम्परेचर, ठीक है. इसके अलावा ह्यूमिडिटी भी मेंशन करते हैं, होती है वहां पर. जी सर. वहां पर विंड की कंडीशन बताते हैं, ठीक है. तो दीज ऑल थिंग्स इंक्लूड इन दी वेदर. ओके, हम इसका जो हम स्टडी करते हैं, जब हम इसका एवरेज लेंगे फॉर स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, बी कॉल्ड एज क्लाइमेट. ओके, ये इनकी डेफिनेशन है. इन्होंने यहाँ पर एक स्टैंडर्ड टाइम लिया है. इसका जो टाइम लिया है वो लिया है 30 ईयर का. पहले हम 30 ईयर का जब एवरेज लेंगे तो हम इसको क्लाइमेट बोलेंगे. तो ये एक तरह का क्या है, एक स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन है ऑफ वेदर, या हम दूसरी तरह से कह सकते हैं क्लाइमेट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ ठीक है. तो क्लाइमेट ये हो गया, ठीक है. तो इन दिस डेफिनेशन वी हैव अंडरस्टूड. इन्होंने क्या है कि जो हम क्लाइमेटिक को बात करेंगे वो हम करेंगे स्टैंड, या तो स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन है या फिर एवरेज. ओके, तो ये हमने अभी देखा. नाउ मूविंग फर्दर टू नेक्स्ट पार्ट विच इज दी. अच्छा, अब इन्होंने ये देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम कंफ्यूज ना हो कि वेदर और क्लाइमेट में, वेदर फिर क्या हुआ, क्लाइमेट क्या हुआ. द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड दी weather is, climate is what you expect, weather is what you get. अब इसका क्या मतलब है, इन्होंने वैसे मेंशन तो कर दिया, अब इसको समझें कैसे. इसका मतलब है आप जब क्लाइमेट की बात करेंगे, ठीक है, तो क्लाइमेट में आप क्या लेंगे, हमने पढ़ा जैसे एवरेज लेंगे. किसका लेंगे, वेदर का. ठीक है, अब वेदर में क्या क्या इंक्लूड होती हैं, वेदर में तो हमारी सभी, वी कैन इंक्लूड ऑल दीज थिंग विच इज रिलेटेड टू दी, जैसे एयर प्रेशर है, ठीक है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी. ठीक है, ह्यूमिडिटी है, वो सारी चीजें हम देखेंगे. लेकिन उसका एवरेज लेंगे, उसका एवरेज लेके हम क्या करेंगे, फिर प्रेसिपिटेशन करेंगे, यानी प्रिडिक्शन करेंगे. अब जब हम इन चीजों को देखेंगे, एयर का दबाव देखेंगे, ठीक है, टेम्परेचर देखेंगे, हम जैसे कहते हैं कि आज बहुत गर्मी हो रही है, कल बहुत बारिश होगी. इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या किया, टेम्परेचर देखा. अपने वैसे हम जनरली बात बता रहे हैं, जैसे हम लोगों में होता है, घरों में देखते हैं हम कि जब जितनी ज्यादा गर्मी होती है तो कहते हैं कि अगले दिन बारिश जरूर होगी. तो ये क्या किया हमने, पहले देखा कि टेम्परेचर आज बहुत ज्यादा गर्मी है, तो हो सकता है आज शाम तक कोई बारिश हो जाए. ठीक है, तो हमने क्या किया, एक एक दिन का अपना क्या लिया, ड्यूरेशन लिया, जहां पर हमने अपना टेम्परेचर लिया और फिर कहा कि आज बहुत गर्मी थी इसलिए शाम को बारिश होगी. ठीक है, ये बोल दिया हमने. या फिर हमने बोला कि आज क्या है, आसमान में बहुत सारे बादल हैं, ठीक है, तो आज हो सकता है बारिश हो जाए. तो हमने इसमें भी क्या कहा, आज एक दिन का हमने लिया कि आज ऐसी चीज कंडीशन है तो ये हो गई है. तो ये चीज हो गई कि व्हाट यू एक्सपेक्ट एंड व्हाट यू गेट. अब इसमें हम कैसे करेंगे, अब क्लाइमेट क्या होगा और वेदर क्या होगा, इसमें देखो.
अब हम कह रहे हैं कि आज बहुत सारे बादल हो रहे हैं, बारिश हो जाएगी, ये तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बादल है तो बारिश हो जाएगी। लेकिन शाम को बारिश होती नहीं है और गर्मी बढ़ गई है, या फिर शाम को तारे खिल जाते हैं अच्छे, तो बारिश नहीं होती है, तो वो क्या होगा, वेदर है। तो हम ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये इसका मेन डिफरेंस है क्लाइमेट और वेदर में। सबसे पहले ये बात कर रहे हैं क्लाइमेट में, सबसे पहले कह रहे हैं जब भी हम क्लाइमेट लेंगे, वो लेंगे 30 ईयर का जो एवरेज होगा एटलीस्ट। ठीक है। ओके, 30 ईयर का एवरेज लेंगे जो कि वेदर का होगा, पहली बात इन्होंने की है। दूसरी बात क्या की है, जब हम क्लाइमेट लेते हैं तो जिस रीजन का हम ले रहे हैं उसको बोलेंगे वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन। जब हम जैसे कि हम ले रहे हैं अपना नॉर्दर्न साइड का, जो हमने कल परसों पढ़ा था कि नॉर्दर्न साइड कैसे हम रीजन में डिवाइड किए थे ना, तो हम नॉर्दर्न साइड का ले रहे हैं, तो हमने ये देखा कि वहां पर इस तरह के चेंजेस आ रहे हैं। तो उस तरह के चेंजेस को हम फिर क्या कहेंगे, ये यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन। जब हमने 30 साल की स्टडी की है, उसका एवरेज निकाला, हमने उसके सभी चीजों की स्टडी किया, तो फिर हम एक एक कंक्लूजन पर निकलते हैं। फिर हम कहते हैं कि नॉर्दर्न रीजन की क्लाइमेटिक कंडीशन, कंडीशन ट्रॉपिकल है। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। या फिर हाई ऑल्टीट्यूड वाली है। तो ये कंक्लूजन जब निकलता है उसको हम बोलते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन, या फिर तब हम उसको फिर क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड करते हैं कि ये इस जोन का चीज है, ठीक है। तो एक चीज उन्होंने ये बताई है, दूसरी चीज क्या बताई है इन्होंने, पहले तो ये बताई है। अब हम इस चीज को निकालते क्यों हैं? इससे हमें क्या फायदा है, ठीक है। अब पहली चीज तो हमें ये चीज पता लग जाती है कि अब जब हम स्पेसिफिक ड्यूरेशन टाइम पीरियड का स्टडी करते हैं, तो हम उसमें जो वहाँ की कंडीशंस हैं, कभी कभी वो भी जैसे कभी एक्सट्रीम कंडीशन रहती है, तो कभी क्या होता है, ड्राउट हो जाता है। ये नॉर्थ में तो उतना नहीं होता, लेकिन वेस्टर्न पार्ट में दिखता है ज्यादा ये। ड्राउट मतलब सूखा जब पड़ जाता है, ठीक है। सूखा कंडीशन वाली जब हो जाती है, जब बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, तूफान आ गया है या हरिकेन आ गई है, ठीक है, बहुत जगह पर होता है ऐसा, या फिर कहीं बाढ़ आ गई है, तो ये सारी कंडीशन भी हम दे लेते हैं, ठीक है। तो ये भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। उसका पीरियड, जो टाइम का रेन का ड्यूरेशन है, वो कभी कहीं ज्यादा कहीं कम किस तरह से रहता है, ये सब हम इंक्लूड करेंगे। ये चीज तीसरी बात की इन्होंने। जो चौथी बात इन्होंने की है, वो लास्ट जो इन्होंने की है, कि हम इसका यूज क्यों करते हैं, क्या के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन का हमें स्टडी करना क्यों जरूरी है। ओके, क्लाइमेट का हमें इसलिए जरूरी है, फर्स्ट, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रीजन। ओके, दूसरा क्या हमें इसका फायदा है, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन, टू डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ओके, अब ये फ्लोरा फौना मैंने बोला, क्या मतलब होता है फ्लोरा फौना का, मालूम है किसी को? Flora means sir plants and fauna means या तो फ्लोरा विच आर रिलेटेड टू दी plants, all the things, plant species. and fauna which is related to the animals. अब हमें कहें कि अगर क्लाइमेटिक कंडीशन मालूम होगी तो इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ, ये हमें पता हो जाएंगे। और हमें ये पता लग जाएगा कि इट हेल्प्स टू डिटरमाइन व्हाट
type of plants grow in this specific region, and it also help us to determine determine that what kind of animal or animal species